नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज आ रही है जिसका नाम है द हंट फॉर वीरप्पन, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस सीरीज के क्रिएटर्स, इसके जो डायरेक्टर हैं सेल्वमणि सेल्वराज, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अपूर्वा बख्शी जो इसकी प्रोड्यूसर हैं वो हैं, और मोनिशा त्यागराजन। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। थैंक यू। मैंने 4 पार्ट की ये जो सीरीज है उसके कुछ एपिसोड्स देखे और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा जिस तरह से वीरप्पन की जिंदगी को पेश किया गया है। इसमें बहुत ही कैप्टिवेटिंग और बहुत ही एनग्रॉसिंग है ये सीरीज। मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि ये ख्याल कैसे आया कि इस पर एक सीरीज बनाए, क्योंकि वीरप्पन के बारे में तमाम बातें पिछले कई सालों से कही जाती रही हैं, कई किताबें छप चुकी हैं, कई फिल्में बन चुकी हैं, तो डॉक्यूमेंट्री बनाने का ये ख्याल कैसे आया? So I was extremely fascinated by the character Veerappan, and I wanted to know more. I wanted to know because I also knew only very few things on the surface level, like the fact that he was a sandalwood smuggler. He was known as the elephant killer. He had this big mustache, and he was ambushed. Whether was it an ambush? What really happened? So all these theories and all these narrative constructs around the man, very basic, is what I knew. But I had the fascination because I grew up to this story. The fact that we had discussed so much about Veerappan as friends, but we never knew the truth. And एक मिस्टिक एंगल definitely, the fact that nobody was able to give me a comprehensive answer for who this man was, why this happened, and a couple of books I'd read by Mr. Vijay Kumar, Chasing the Brigand, and another Tamil book called Solagar Totti. So these 2 books made me realize that there are 2 sides to the story, and I wanted to go understand what really happened. So the whole exploration was finding the truth as much as possible, right? That I understood later, that I can only find as much as possible. I can't find the exact truth. So आपका कहना है कि इसमें जो कुछ भी दिखाया गया 4 पार्ट की सीरीज में, और भी ऐसे कई एस्पेक्ट है वीरप्पन के जो आप कवर नहीं कर पाए हैं, जो नहीं बता पाए हैं, और भी उनके बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं स्टोरी में। there are other stories maybe we're not covered, but whatever you need to know to understand the man and the story, that has been shared. Like with this, you will be able to say, okay, this is my understanding of Veerappan. That could be subjective and that should be subjective, but we have happily shared whatever you need to know to form your own opinion. कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वीरप्पन जो जंगलों में ऑपरेट करते थे तमिलनाडु और कर्नाटका के, लगभग 30 साल तक उन्होंने इस तरह से हाथियों का शिकार किया, 100 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने मारा, और तमाम तरह की बातें उनके बारे में कही जाती रहीं। लेकिन कितना चैलेंजिंग आपके लिए था इस सीरीज़ को बनाना, फैक्ट्स को प्रेजेंट करना, जैसा फैक्ट्स है वैसा प्रेजेंट करना, कितना मुश्किल था? By myself, it would have been impossible. So I had a great team with me, and with their skills and their support, we managed it. We were able to say, like, to now sit and say that we couldn't have done anything better. That happened because of the team. So challenging as in definitely the fact that it's a very controversial topic. If you go approach people as a stranger, they're not going to open up. So we had to build the trust. So that took time, and it was a very pleasurable experience. So as challenging as things were, they were very challenging, but it was very pleasurable for us because we wanted to go on this journey like wherever it took us, we were ready to travel. अपूर्वा और मोनिशा, आप दोनों से जानना चाहूँगा कि इससे पहले आप दोनों ने दिल्ली क्राइम 1 प्रोड्यूस की थी, बहुत क्रिटिकल एक्लेम मिला था, एमी नॉमिनेशन भी मिला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो क्या बात थी कि आप लोगों ने सोचा कि इस सीरीज से, इस डॉक्यूमेंट्री से जुड़ा जाए, डॉक्यूमेंट्री सीरीज से जुड़ा जाए, इसे प्रोड्यूस किया जाए? और आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग था रिसर्च के लेवल पे, शूट करने के लेवल पे, क्योंकि दिख रहा है सीरीज में कि कितनी मेहनत की गई है, जंगलों में जाके आप लोगों ने शूट किया है, ऐसे तमाम लोगों को आप लोगों ने जाकर ढूंढा है जो वीरप्पन को कहीं ना कहीं से जानते हो, उनकी पत्नी से भी, मुथुलक्ष्मी से भी आप लोगों ने बात की है। कितना चैलेंजिंग आप लोगों के लिए था?
तो रिसर्च हमेशा एक बहुत बेडरॉक होती है हमारे चॉइस ऑफ कंटेंट की, एंड वो आपको पता है, ये डेली क्राइम में भी वही था एलिमेंट बहुत स्ट्रांग, हम एमी जीते भी थे उसके लिए। लेकिन जब आई थिंक सबसे पहली बात इज़ क्रिएटर का पैशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हम इस किसी भी स्टोरी में इंडल्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, अपना पूरा टीम को खड़ा करेंगे ताकि क्रिएटर का जो विजन है वो हम अचीव कर पाएँ, और हम अलाइंड हैं उस विजन के साथ कि नहीं। बट स्टार्टिंग से लेके अभी तक ये बात बहुत क्लियर हो गई थी कि ये कहानी सिर्फ, जैसे उन्होंने बोला कि ये कहानी के लिए एक टीम को आना ज़रूरी था, और उस टीम में हर किसी का एक किरदार था, और उस किरदार के बियॉन्ड एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करके ही हम आगे साथ बढ़े हैं। प्रोड्यूसिंग चैलेंजेस मेरा थोड़ा स्टोरी लेवल पे कंट्रीब्यूशन था कि हम इसको किस तरीके से बताएंगे, और एग्जीक्यूशन लेवल पे मनीषा ने ग्राउंड पे हर तरीके के पॉसिबिलिटीज़ को अचीव किया। मुथुलक्ष्मी हमें ट्रस्ट करें, ये इन दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उन्होंने बहुत उम्दा तरीके से उसको निभाया। उनके साथ बहुत टाइम लगा, उनको ये बनाने में बहुत टाइम लगा। अच्छा। इसके साथ साथ एक्चुअली हमारी जर्नी जो जब टीम साथ में आई तो कोविड तब भी शुरू हुआ था। तो आई थिंक उस कोविड के टाइम पे रिसर्च करना सबसे पहले मतलब बहुत मुश्किल था वो, क्योंकि हमारी टीम स्प्रेड आउट थी दोनों स्टेट्स में, तमिलनाडु कर्नाटका में, हर गांव में जाके बेचारों को कहाँ नहीं जाना पड़ा, और उनको भेजने में वो सबसे पहले हमारी चैलेंज थी। दूसरी बात तो इन लोगों को ढूंढना, और मतलब बहुत ट्रस्ट बिल्डिंग सिर्फ उनके साथ नहीं बाकी सब के साथ करना पड़ा था, क्योंकि ये कहानी उन सब के लिए बहुत स्पेशल है, मगर उनके मतलब मेमोरीज़ सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। तो हमको वो थोड़ा सा समझना था उनकी कहानी, उनको समझना पड़ा, उसके बाद जाके वो पूरा कर पाए। तो आई थिंक वो टीम के साथ साथ हम जो अचीव कर पाए हैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, नहीं बहुत इम्पोर्टेंट ये था कि हम ना आ जाएं बीच में फिल्टर लगाने के लिए कि हम क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में, और वो बात जो एक डिसाइडिंग फैक्टर थी कि हम तीनों का एक बहुत क्लियर नॉर्थ स्टार था कि हम ये चीज़ जैसी उन्होंने, क्योंकि उन लोगों ने ये जी है कहानी 20-20, 25-25 साल जेल में, कई बार अपनी फैमिलीज़ को लूज़ करके, पुलिस ऑफिसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिलेंटलेस था 20 साल एक आदमी को ढूंढने के लिए, और कितने ऑफिसर्स की जान भी गई। ऑन द अदर साइड विलेजर्स के उसमें कि भाई हम तो बीच में जब हाथी चलते हैं तो घास ट्रैम्पल हो ही जाती है। सो हर पर्सपेक्टिव को जब हमने सेल्वा ने और मनीषा ने शूट करके वो लेके आए टेबल पे, और जब हम एडिटिंग और डॉक्यूमेंट्री राइटिंग शुरू करी तो एक ही चीज़ का बहुत बड़ा एक हमने नॉन नेगोशिएबल रख लिया था कि इस बात पे हम अपना पर्सपेक्टिव नहीं डाल सकते। ये इनकी कहानी है, इनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी ही कहानी हम बस मीडियम बन रहे हैं, उसको बताने का वाहन चालक बन रहे हैं, लेकिन हमारा उसमें उसको स्टीयर करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेल्वा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब बहुत ही फैसिनेटेड आप लगते हैं इस कहानी से, जिस तरह से आपने बताया कि आपने क्यों सोचा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो कौन सा मौका था जब पहली बार आपको वीरप्पन की ज़िंदगी के बारे में कुछ पता चला, और उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? मे बी चाइल्डहुड, बचपन से फैसिनेशन रहा है इस शख्स के बारे में जानने का? Yes, so there are some personal connections in a very strange way that like when we went so these forests, right, they are very close to a place that I often visit, Coimbatore. We have family in Coimbatore, so we keep going there, and in one of the trips, so everywhere, like when we go to Coimbatore, we definitely make it a point to ask about Veerappan because of how he was such a part of our mainstream narrative, films, in every like he was even just Ram Gopal Verma made a film on that. I saw that film. Yeah, no, I'm talking about in normal films, the reference of Veerappan, you'll find that it was a cinema that we witnessed.
It's just that it's a true story, right? Like for over years, like will he get caught? He was there in headlines very often, right? He would keep doing these things, and there is no precedence to the story like this. It's not like, oh, Veerappan is somebody like this. No, this is a story we never. It's stranger than fiction. Yes. And it's true. So we'd constantly talk about it, and there was this as a school boy, you were fascinated by these things like a mustache and everything. So one of the trips to Coimbatore, when we were on the car, we were told that this is not a safe place, and we had to like go around. Which How old you were then? By about 10 to 12, Achha. and it's because Veerappan and the gang was spotted there. Oh, So that just excited us, you know, the fact that it didn't scare you. no, I saw everybody else get scared. Achha. And I'm like, I want to meet Veerappan. So, You wanted to meet Veerappan. of course, like, because the things that you hear, it's not like he was killing people who he was meeting. He was extremely nice to some people. Like there Helpful. were, yeah, to like the others. Robin Hood. Robin Hood kind of. That stories were definitely a part of our childhood, that he was this person. So that, and for me, when I read the books, those 2 books that I mentioned, is when I realized that I need to know more, and when I started meeting these people. So was there any temptation to make a film, a feature film, or you thought of making a documentary first? Like there was no temptation to make a feature film. Not a feature film, because this is a big story for a film, but a fiction series, yes. I definitely danced with that idea for a while, till I met these people, and I realized that they need to tell their story. It's not Selvamani's story of Veerappan, no chance. Let it be there, because it was too real a story for us to come and fictionalize it. That desire to tell a fiction series will always be there. Now that this is done, like that responsibility of having pursued the story with honesty, when we're happy with that we pursued it with all honesty, but definitely like a cinematic interpretation will be nice. मुझे इस तरह की डॉक्यूमेंट्री सीरीज में एक बात बहुत अच्छी लगती है, खासकर नेटफ्लिक्स में मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री सीरीज देखी हुई है कि किसी क्रिमिनल को लेकर अगर सीरीज बनाई जाती तो उसकी जो साइकी है, उसका जो मनोविज्ञान है, मनोस्थिति है, वो क्या रही होगी जब वो क्रिमिनल बना, बचपन में क्या कुछ हुआ होगा उसके साथ, वो दुनिया को कैसे परसीव करता है, उसमें झांकने की एक कोशिश होती है। इस सीरीज में भी हम देख सकते हैं कि उसकी साइकी क्या है वीरप्पन की, उसको जानने की एक कोशिश है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? Why didn't you want to say that? I'm saying डॉक्यूमेंट्री का सर एक मकसद जो होता है वो एक बात को बहुत अच्छे से समझना और हर पहलू से समझने का होता है। तो क्या होता है कि मतलब जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं मानिए, या अगर हम सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ते हैं तो वो एक पहलू से होता है। डॉक्यूमेंट्री में अगर जैसे ये हंट फॉर वीरप्पन है, अब कायदे से अगर टाइटल देखे तो मतलब सब सोचेंगे कि सिर्फ पुलिस की कहानी है, और जो उनकी तरफ की कहानी बिल्कुल एक तरफ से आती है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री तभी एक वेल रिसर्च पीस होती है जब वो हर तरफ से कवर करती है टॉपिक को 360 डिग्रीज, और उस इंटेंट के साथ हमने जाके सबको रीच आउट किया, जितने लोग थे, गैंग मेंबर्स चाहे वो जर्नलिस्ट हो, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर से लोग क्या देख रहे थे और फिर ऑफिसर्स के साथ क्या हो रहा था। तो ये सब साथ में हमने कवर किया था इन दैट सेंस। सो दैट आई फील इज़ समथिंग दैट इज़ इंटीग्रल टू डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग। और जब हम नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखते हैं तो उसके साथ एक थोड़ी सी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि एंगेजिंग हो, कि लोग इंटरेस्टेड भी हो, तो वो कहानी कैसे अच्छे से बता सकते हैं। आई थिंक चैलेंज कम्स देयर। सो आई थिंक आप फिक्शन ले लीजिए, नॉन फिक्शन ले लीजिए, कोई भी कैरेक्टर वाइट एंड ब्लैक तो होता ही नहीं है, राइट? इट इज़ द जो उनके फ्लूइडिटी बिटवीन द टू ग्रे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। और आई थिंक इस कहानी में हमें कुछ भी एम्बेलिश या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमने मतलब वो हमारा इंटेंशन नहीं था। लेकिन फिक्शन में भी यही होता है कि आप एक एग्जैक्टली उनकी साइकी को समझें। एंड मेरा ये तजुर्बा रहा है कि हर रिलेटेबल इमोशन, आपको कुछ पसंद आता है तो आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं
उसकी अंडरस्टैंडिंग में ह्यूमनाइजिंग कहते हैं कि भाई कोई ना कोई तो ट्रिगर्स होंगे। उन्होंने एक्सट्रीम में रिएक्ट किया, हम मेजर में रहते हैं, तो उस दायरे, उन दायरों को रख के और पहलुओं को रख के रिप्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं तीनों से आप तीनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप हिंदी में कुछ बोले। आपने अभी तक हिंदी का एक शब्द नहीं बोला है। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जब ये आप सीरीज बना रहे थे तो ऐसा कौन सा वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग पहलू जो वीरप्पन का था आपको पता चला और आप शॉक्ड रह गए कि यार ये तो मुझे नहीं पता था, रिसर्च के दौरान पता चला या इस सीरीज को बनाते वक्त वो ऐसा कुछ एक चीज जो आपको वीरप्पन के बारे में पता चली है जो किसी को नहीं पता थी? Okay. जिसने so- शॉक कर दिया हो आपको या Shocked, सरप्राइज कर दिया हो कि ये क्या था? Oh, that used to happen on an everyday basis. So something interesting that I wanted to say is I know who his favorite actor is. अच्छा, Like who he really like. I mean, he wanted to be a film actor. हाँ, So he had actually shot a. Shall I try this in Hindi? Yes, you should. बिल्कुल। वो एक फोटो खींच के हाँ, try. और प्रसाद, वो एक स्टूडियो है मद्रास पे, हाँ, उधर भेजा. So he wanted to be an actor. He wanted to be a cowboy. So this was the time in 70s when cowboy films were made in Tamil. किसको आइडियलाइज करते थे वीरप्पन? The actor, हम्म, an actor director called Bhagyaraj. अच्छा, So he used to like him a lot, and yeah, a lot. Like he was influenced by films a lot. He wanted to be an actor. So this projection of himself, the way he wanted to see himself, it started from very तो early. अगर एक्टिंग में चांस मिल जाता तो वो He wouldn't have come into this. You know, that's like something that was. बहुत ये ही- एक्चुअली बहुत ही- हमको काफ़ी अलग अलग लोगों ने बताया कि इनको बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थे खुद। तो जब कोई कहानी बताते थे अपेरेंटली बहुत बिल्कुल ड्रामेटिक तरीके में बताते थे, पूरे साउंड इफेक्ट्स के साथ और जेस्चर्स के साथ। तो वो थोड़ा हमें फैसिनेटिंग लगा कि मतलब जंगल में बैठे रोज़ BBC न्यूज़ सुनते थे। तो ऐसे चीज़ें थे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और ऑफ कोर्स इनकी जंगल की नॉलेज, वो जब हमें उसके बारे में समझ आई, क्योंकि हम लोग जंगल में शूट कर रहे थे और वहाँ पे चलना मुश्किल, रहना तो दूर की बात। तो वो सारी चीज़ें हमको जब पता चली थी तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग लगा था वैसे। मेरे लिए मुझे जब ये पता चला कि वो जंगल की लकड़ी के साथ उन्होंने एक बांसुरी बनाई थी और वो बहुत अच्छा गाते थे, हाँ, वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि एक काफ़ी लोगों ने ये कंफर्म किया और जिन्होंने उनके साथ बहुत टाइम जंगल में बिताया भी, जो अबडक्टेड थे राजकुमार के साथ, उन्होंने ये बताया कि वो तमिल गाने बहुत अच्छा गाते थे। तो आर्टिस्टिक साइड जो था वीरप्पन का, वो मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था। और जब रिसर्च ये लेके आई तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसा पॉसिबल है कि डिफरेंट फैसेट्स जो मैंने हो बोला सकते हैं, इंसान के होते हैं। और इंसान भले ही खूंखार हो लेकिन हो सकता है कि कुछ टैलेंट उसमें अलग से हो। बहुत ज़्यादा वो इतने अच्छे लेवल पे हो, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। चलिए, ABP न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you उम्मीद so much. करते हैं कि दिल्ली क्राइम 1 की तरह ही इसे भी एमी नॉमिनेशन और अवार्ड मिले। Thank you. और शायद आप हिंदी फिल्मों में ट्राई करें बतौर डायरेक्टर, ऐसा हो सकता है? आप इसे एक साइन Possible ऑफ है? डायलॉग Hindi films. हाँ. If I'm able to speak in Hindi, then I will definitely. उसके लिए हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है। इनको एक डायलॉग तो आता है। Oh, बड़े-बड़े देशों में ऐसे छोटी-छोटी बातें रहती होती है. रहती होती है। My wife really loves Shah Rukh Khan, so. अच्छा। चलिए, ABP न्यूज़ से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि बड़े पैमाने पर इस सीरीज को द हंट फॉर वीरप्पन को देखा जाए और लोगों को अलग अलग पहलू जो हैं वीरप्पन के, जो अभी तक नहीं पता है, वो पता चले इस सीरीज से। मुझे तो बहुत पसंद आई और पूरी दुनिया को पसंद आई, यही शुभकामनाएं। थैंक Thank you so much. थैंक यू बहुत रवि बहुत जैन, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे। दिला दो घर चंडीगढ़ में, वेल वो गाना तो आपने सुना होगा। वेल
हम आपको चंडीगढ़ में घर नहीं दिलाने वाले, बिकॉज उतना बजट नहीं है ना, समझा करिए। लेकिन हाँ, चंडीगढ़ की सैर जरूर करा देंगे, क्योंकि उतना बजट तो हमारा है ही, और चंडीगढ़ की सैर होगी काफी एंटरटेनिंग, क्योंकि ये सैर हमें करा रही है सीरियल उदारिया की नई कास्ट। हाय, सत श्री अकाल। उडारिया की तीसरी पीढ़ी जो कि आ गई है आप सबसे मिलने। तो मेरा नाम है अलीशा, जो कि आप मुझे देख पाएंगे एज एन आलिया। हेलो, दिस साइड अनुराग चाहल, आप मुझे देखोगे अरमान के कैरेक्टर में। सत श्री अकाल, मैं हूँ अदिति भगत और आप मुझे देखेंगे आसमा के कैरेक्टर में। तो हम सब नर्वस हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लेजेंडरी शो है और पिछले 2 साल से आप इसे इतना प्यार देते आ रहे हैं कि हमने से थोड़े ग्रीडी हो गए कि हमें भी दे दो थोड़ा प्यार, थोड़ा सा हमें भी दे दो, उससे थोड़ा ज़्यादा दे देना। पर वो नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, बटरफ्लाइज हैं, बट ना वो जोश भी है कि बहुत मेहनत करनी है। पंजाब तो मैं ही घुमाऊंगा ना आपको, रियल में मतलब गांव लेके जाऊंगा मैं। बताएंगे हम लोग आपको। बोला इसने बहुत है, बोला बहुत सब बहुत बोला है। क्योंकि देखो अभी तो 3-4 दिन, जब भी छुट्टी मिलेगी मैं फिरोजपुर लेके हम जाऊंगा। 6 महीने बाद बात करेंगे। ऐसे करते हैं, आज चलते हैं, कल का कल देखेंगे, आज चलेंगे चंडीगढ़ घुमाते हैं आप लोग। बहुत टायर्ड थोड़ा सा फील कर रही हूँ, क्योंकि शूट भी चल रहा था और आज मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस है, थोड़ा सा टायर्ड है। भूख लगी थी तो खाना खा रही हूँ। कॉस खाने का मज़ा तो यही है एग्जैक्ट। तो मैंने सब एकदम घर का खाना, जैसे रोटी, थोड़े से रोटी विद बटर और थोड़ा सा राइस, सूप है इसमें, सैलेड ऑलवेज और पनीर। अभी हम लंच कर रहे हैं, ये खा रहे हैं मटन, है ना। और मैं हाँ नहीं, मैं इस पे भी आऊँगा। ये दाल मखनी है यहाँ की फेमस, और ये पनीर है। टमाटर मैंने नहीं मंगवाए हैं क्योंकि बहुत महंगे हो गए हैं टमाटर, सो नहीं, हमें प्रोडक्शन दे रही है इतने महंगे टमाटर। आई एम रियली सॉरी अरमान, बेटर लक नेक्स्ट टाइम दैट यू गेट टमाटर। चलो कोई बात नहीं, मैं गाँव से ले आऊँगा, हमारे टमाटर लगा रखे हैं वहाँ पे हमारे फार्म में। एक टमाटर। नो बट ऑनेस्टली इट्स फन यार, इतनी मेहनत करने के बाद जब खाना मिल रहा है ना, सुकून ही अलग है। इनके साथ मैं रहती हूँ, इन्हें तेल कोई ऐसा भी नहीं चाहिए, इतना सा तेल चाहिए, मसाले नहीं चाहिए, प्याज नहीं चाहिए तो प्याज चाहिए किसी में, तो इनके बड़े नखरे हैं। तो अब हम थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं और आपसे हम मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद, जहां हम सैर कर रहे होंगे और आपको भी सैर करा रहे होंगे। सो लेट्स मीट। सो गाइज, मैंने किया था वादा, दोनों लड़कियों को लेके आऊँगा मैं लेक पे। तो मेरा घर भी यहीं आसपास में ही है, देखो वो सामने मेरा घर है और मैं आता जाता रहता हूँ। चलें पहले ये घूम तो लो। सो आपको कैसा लगा मेरा वादा? अरे वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली एटलीस्ट तूने ये पूरा किया। बट मुझे बोटिंग भी करनी है। बोटिंग भी करनी है? हाँ तो चले। तो जा फिर, आप बताओ। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत सुंदर लगा यार ये। पक्का? बहुत, हाँ। So guys, बहुत सुंदर व्यू है, आप उधर देखेंगे तो वो बादलें इज
इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल। बहुत सारी फोटोज, बहुत सारी रील खिंचवा ली। अब तो शॉपिंग, आई मीन गर्ल्स लव शॉपिंग, तो हमें शॉपिंग तो करनी बनती है। तो किसी शहर को अगर आपको बहुत अच्छे से जानना है तो उसका सबसे परफेक्ट तरीका है वहाँ का लोकल मार्केट। तो आज हम आ गए हैं शास्त्री मार्केट चंडीगढ़ के। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। एज यू कैन सी देयर आर बबल्स अराउंड योर। हाँ, हो सकता है आप शायद किसी को मिस कर रहे हो, पर उसे काम था, उसे सेट जाना पड़ा है, तो हमारे पास बहुत टाइम था। है तो हम चलते हम हैं। पहुँच गए शॉपिंग करने के लिए। आइए। और इसमें ये एवरी टाइम आप मैरिजेस में, यहाँ पर पंजाब की मैरिजेस होती हैं, उनमें ये दुल्हन को ओढ़ते हैं, और शादी में हर कोई, जैसे जागो वगैरह में ये यूज़ होती हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि सूट के ऊपर, मतलब उस सूट के लिए जूती खरीदने के लिए मैं और हम जुतियाँ ना देखे तो क्या ही है फिर। वी आर मिसिंग इट। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली यहाँ पे कितने ऑप्शंस है ना, मतलब कंफ्यूजन ही हो रही है कि क्या खरीदे क्या देखे। तो ये थी हमारी आज पूरे दिन की सैर, जो कि हमने आपको चंडीगढ़ का मार्केट दिखाया और हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप हमें रोज मंडे से संडे कलर्स पे 7 बजे देखें ओडारिया में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पूरे लखनऊ में मैंने तुम्हें घुमा दिया, सारी खास खास जगह सब दिखा दी। इमामबाड़ा तुम्हें दिखा दिया मैंने, हाँ, गोमती नदी मैंने तुम्हें दिखा दी, ओके। और तुम्हारा फेवरेट जो खास फूड है, जो तुम बहुत टाइम से बोल रही थी, गलौटी कबाब, वो मैंने खिला दिया। कैसे थे? पान, खास वाला पान मैंने नहीं खिला दिया। और कुछ खास बचा है? बचा है ना? क्या? आज की खास खबर क्या है? ओ हाँ, तो आज की खास खबर क्या है वो आप देखिए। एहसास। हाय, आई एम ज्ञानेंद्र त्रिपाठी। और आज हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा जो शो आया है हाफ सीए, उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो खाना आ चुका है, आइए शुरू करते हैं। मंचेस यही होता था हमारा ना मोस्टली। हालांकि शूट पे थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा मंच ना करें वरना वो सारा मंच आपके चेहरों पर दिखता है। मैं तो बहुत बड़ी फूडी हूँ, पर मैं परपेचुअली एक डाइट पे रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी मम्मी हर सुबह उठ के मेरी टोकरी, मेरा एक फूड बास्केट होता है। आपने देखा मेरा फूड बास्केट कभी? हाँ, मेरा फूड बास्केट है, बहुत बड़ी बास्केट है। उसमें पूरे दिन के मील्स होते हैं, तो उसमें मंचीज़ भी होता है, और लंच होता है, ब्रेकफास्ट होता है, शाम का नाश्ता होता है, डिनर में करती रही। तो फ्रेंडशिप रेजोल्यूशन का कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। या एहसास एक्चुअली केम अप विद दिस आइडिया कि तो हमें करना क्या है कि ये इस स्टिक्स पे फ्रेंडशिप गोल्स लिखने हैं, और
ये रिबन भी चिपकाना है और एक दूसरे को हम दे देंगे। एग्जैक्ट। एहसास क्या बनाया आपने आज? मैंने अपने सारे फ्रेंडशिप एक्सपेक्टेशंस और गोल्स इन स्टिक्स पे लिख के मैंने इनको ऐसे एक साथ चिपकाया है। तो मैं पहले अपना बताती हूँ मेरे एक्सपेक्टेशंस और गोल्स क्या है। सबसे पहले है गाइडेंस। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों को आपको सही गाइड करना चाहिए, सही एडवाइस देनी चाहिए। दूसरा है आर्ची एंड नीरज। मुझे लगता है आर्ची और नीरज फ्रेंडशिप गोल्स हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं समवेयर और दी अदर। जैसे नीरज तो काफ़ी एविडेंटली कर देते हैं, क्योंकि आर्ची उनके पास हमेशा गाइडेंस के लिए जाती है, बट देयर इज़ अ पॉइंट वेयर नीरज आर्ची को गाइडेंस देते देते खुद एक रियलाइजेशन कर लेते हैं। तो आई थिंक वो भी काफ़ी मैटर करता है। और नॉन जजमेंटल, मेरे सारे दोस्त लकीली टचवुड जो भी मेरे दोस्त हैं सबके सब नॉन जजमेंटल है। मैं दुनिया की सारी बकवास करती हूँ, मेरी सारी गलतियों को वो गाइड ज़रूर करते हैं पर वो कभी जज नहीं करते मुझे। और नेक्स्ट है आर्ची एंड विशाल। जैसे कि मैंने कहा कि शो में आर्ची और विशाल की फ्रेंडशिप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। दोनों ये मतलब आई थिंक ये एक गोल है कि लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं, तो आर्ची और विशाल वो है। मैंने लिखा है तो मुझे लग रहा है कि ये सीढ़ियाँ बनाई मैंने, इन सीढ़ियों पे चढ़ के आप मेरी जो दोस्ती की समझ है उसके पीक पे पहुंच सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर फ्रेंड हैज़ टू इंस्पायर मी द वे ही और शी कैरीज और कंडक्ट। फॉरगिविंग होना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं, तो हम अपने दोस्तों को माफ़ करें। ऐसा नहीं है कि किसी बात को गांठ बांध के बैठ जाएं और कोई दूसरा आप सारे खिड़की दरवाजे बंद ना करें। नॉन जजमेंटल होना चाहिए। मुझे लगता है हर दोस्ती में ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दोस्तों के सामने खुल के अपनी बातें नहीं रख पाएंगे तो फिर किसके सामने रखेंगे, तो वो ज़रूरी है। और आपकी जो दोस्ती है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, कि आपका वक्त बदलेगा, आपके पास सक्सेस और फेलियर और ये सारी चीज़ें आती जाती रहेंगी। Happy Friendship Day, guys, and friendship is an extremely important relationship. This is probably the only relationship that we choose. So choose wisely, first of all. ABP के सारे दर्शकों को हम दोनों की तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। तीज की तैयारियों के बीच तितली को लगा बड़ा सदमा ही लगेगा। कहां वो सोच रही थी कि अपनी पहली तीज धूमधाम से मनाएगी, लेकिन उस बीच उसके पति के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल हो गई है और फॉर सम वियर्ड रीजन एंड लॉजिक उसका ठीकरा फूट रहा है तितली के सर पर। पति पत्नी का रिश्ता ही विश्वास का होता है, और जब इस रिश्ते में विश्वास ही ना हो तो भला ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ सकता है। तितली और गर्व की जब से शादी हुई है, इनके बीच कोई न कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो आए दिन आती ही रहती है। वेल हाँ, मेरे हाथों में हल्दी का लेप लगा रही हैं तितली, बट चोट लग गई है। यस, और क्योंकि अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रखी हैं और कुछ ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं अभी तितली और गर्व के बीच में,
तो वो कॉन्वर्सेशन हो रहा है इन दोनों के बीच, और यहाँ पे भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है तितली, बट गर्व अभी भरोसा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके POV से जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसके अगेंस्ट जा रही हैं। बट अभी तितली फाइंड आउट कर रही है कि कैसे गर्व का भरोसा जीते। तितली और गर्व का रिश्ता जब से जुड़ा है, तब से तितली की बहन हिरल इस रिश्ते को तोड़ने के पीछे पड़ी है। गर्व के खिलाफ हिरल ने ही पुलिस कंप्लेन करवाई और देखिए बेचारी तितली बुरी ही फंस गई। घर वालों को लग रहा है कि तितली ने अपनी बहन का सहारा लिया है इस कंप्लेन के लिए। फिर क्या अब तितली खुद को बेकसूर साबित करेगी केवल 3 दिनों में? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो चाहती है कि मुझे घर से निकाल दिया जाए और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहे, तो वो हिरल, अच्छा हाँ, तो मुझे बोलती है कि अच्छा आज तो तेरी पहली ये है ना, तू देख ज़रा, कुछ दिन की तो मेहमान है, 2 दिन बाद तो तेरे साथ ये सब हो जाएगा। तो इसीलिए गुस्से में नहीं है। ऑफ कोर्स उसकी बहन है तो गुस्सा वाला नहीं है, बट वो बोल रही है फॉर्मली कि नहीं, तू जितनी भी कोशिश कर ले ऐसा नहीं होगा, बिकॉज सच की हमेशा जीत होती है और सच मेरे साथ है। इतना सब कुछ हो गया फिर भी हिरल सुधरी नहीं है। फोन पर देखिए अब भी वो चाहती है कि ये दोनों कभी ना मिले। अब सीरियल में तो एक बहन ही दूसरी बहन की दुश्मन होती है, लेकिन जब बात बहन के सुहाग की आती है तो बहन बहन के खिलाफ हो जाती है और उसे सबक भी सिखाती है, जैसे कि अब तितली करने वाली है। अब तितली समझाने के लिए तो तुम सबको समझा लोगी, लेकिन अपने पति गर्व का क्या करोगी, जिसे बात बात पर इतना गुस्सा आ जाता है, और जब विश्वास की बात आती है तो वो तुम पर विश्वास भी नहीं करता है। ऐसा रिश्ता, जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होना, वो रिश्ता बहुत कमजोर हो जाता है, और कमजोर रिश्ते तो आप जानती हैं कि कैसे टूट जाते हैं। जब पत्नी पति का इतना ख्याल रखती है तब पति को भी तो चाहिए कि पत्नी की बात सुने, समझे और उस पर अमल करे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई ध्रुव तारा में तारा की लाइफ में मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्या है ना कि श्याम मोहिनी की एंट्री हो गई है। अब जिसके नाम में ही मोहित कर देने वाला जादू हो, उसकी एंट्री पर तारा को थोड़ा तो परेशान होना ही पड़ेगा ना। साहिबान मेहरबान कदरदान होशियार है, क्योंकि आज वल्लभगढ़ में पधार रही है राजकुमारी श्याम मोहिनी। अब जैसा कि नाम ही श्याम मोहिनी है, इसकी छवि भी एकदम श्याम जैसी है। इसकी काया है कोमल सुंदर, 16 श्रृंगार कर ये आई है महल में। अब राजकुमारी श्याम मोहिनी देखते ही हम समझ गए हैं कि ध्रुव और तारा की जिंदगी में जरूर तबाही मचाने आई हैं। अगर हम ये कहें कि राजकुमारी एक खूबसूरत बला है तो गलत नहीं होगा। सबके लिए हिंट यही होगा, आप मेरे वेशभूषे को देख सकते हैं, उससे आपको क्या समझ आता है। इतने सारे जो तामझाम है, इतनी सारी ज्वेलरी पहन रखी है राजकुमारी ने, इसका क्या मतलब हो सकता है। और बस इसे हर सुंदर चीज़ें बहुत पसंद हैं, और सुंदर रहना, सुंदर कहना, सुंदर बातें, सुंदर व्यक्ति, सुंदर वस्तु, सुंदर व्यक्तित्व। मैं बहुत दिनों बाद ऐसे पीरियड ड्रामा में शामिल हुई हूँ, और उसके लैंग्वेज को ग्रास्प करने में भी थोड़ा वक्त, थोड़ा समय जाने वाला है। अब हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि राजकुमारी को खूबसूरत चीजें अच्छी लगती है। अब खूबसूरत तो ध्रुव भी है, तो कहीं राजकुमारी का दिल ध्रुव पर नहीं आ जाए, और अगर आ गया तो तारा के साथ भिड़न भी होगी।
उल्का गुप्ता काफी समय बाद नजर आ रही हैं डेली सोप में। उम्मीद करते हैं कि उनके फैंस उनके हर किरदार की तरह इस किरदार को भी उतना ही प्यार दें। फिलहाल आपको बता दें, इस सीरियल ध्रुव तारा में एक कैमियो रोल निभा रही हैं उल्का गुप्ता। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कमाल है ना, कई बार कुछ चीजों में जब आप लॉजिक ढूंढते हैं और वो मिलता नहीं है, और कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल फालतू बनाने वालों की और उनके चाहने वालों के साथ। क्या है ना कि सीरियल इज डूइंग वेरी वेल बट सीरियल इज गोइंग ऑफ एयर। अब ये एक ऐसी रियलिटी है जिसको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वेल, जाते जाते भी सीरियल की कहानी वहां जाकर रुक रही है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि फालतू और उसके क्रिकेट के पैशन पे। अभी थोड़ी देर पहले फालतू की कोच से बात हुई, वो फालतू की परफॉर्मेंस से बहुत खुश है वहां। हमें उसके लिए खुश होना चाहिए। तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? अभी ना करते आखिर फालतू ने सुन ही ली अपने मार्ट साहब की बात और लौट आई क्रिकेट के मैदान पर। एक लंबे अरसे बाद हम फालतू को उसके क्रिकेट गियर में देख रहे हैं और फालतू ने फिर से क्रिकेट खेलने का फैसला लिया है। ये बात सुन के अयान की खुशी 7वें आसमान पर है। जो कल तक बुझा बुझा सा था, आज उसके चेहरे पर रौनक आ गई है। तो सीन में अयान बहुत सैड है, बहुत डिप्रेस्ड है, बट सडनली उसको कॉल आता है फालतू की कोच का और उसे पता चलता है कि फालतू बहुत अच्छा खेल रही है क्रिकेट, एंड दैट मेक्स हिम वेरी हैप्पी। और दादी आके गलत सजेशंस देती हैं कि भगा के ले जा, मैंने तुझे फिल्में दिखाई हैं, तू प्यार करता है उससे। तो प्यार तो करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, छुपा भी नहीं पाता है, नाम आता है तो आंखें नम हो जाती हैं और इमोशनल हो जाता है। अयान के घर वाले अयान को यूं देख खुश तो है, लेकिन अयान की माँ को उसके खुशी के पीछे की वजह से दिक्कत है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अयान की जिंदगी में आने वाली खुशी फालतू के फैसलों पर टिकी रहे। मम्मी जी बहक गई हैं लाइफ में, बातों में आ गई हैं तनीषा की। तनीषा दिन ब दिन अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करती जा रही है, वो और ईविल होती जा रही है हर रोज़, और कुछ ना कुछ और बुरा करने की कोशिश कर रही है फालतू और अयान के साथ, और अभी तक सक्सेसफुली रही है जब तक मुझे याद है जहाँ से। वैसे अयान के प्रॉब्लम का सलूशन फालतू तो नहीं निकाल पाई, लेकिन निहारिका ने अयान के प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ ही लिया। मैं तो कहूँगी उठा लें आप मुझे, और क्या पर अब क्या उठा लो ना यार, क्या इतना मुंह सड़ा के बैठे हैं? आ जाओ वापस, एक बार मांग लो माफी और ले चलो मुझे वापस। आपका डांस और ग्रीन रूम में रोमांस और घर में रोमांस और रोड पे रोमांस किसी और के साथ खत्म हो जाए तो मार्ट साहब कुछ करे ना। मार्ट साहब बहुत एक ही इज अ जेंटलमैन बट एक खुददार आदमी है। मैं कहाँ रोमांस कर रही हूँ, वो गलती से वो मार्ट साहब फुटेज दिखा सकते हैं, स्टार प्लस आता है मार्ट साहब के घर। मेरे पास भी आपके साथ बहुत सारी फुटेज है। कौन सी भाई बता दो? तनीषा के साथ वाली। कोई तो नहीं दिख जाएगा, मार्ट साहब के साथ बदतमीजी कर रही है तनीषा, खुद से कभी नहीं हुआ। चलो धीरे धीरे ही सही, लेकिन फालतू और अयान के बीच में चीजें ठीक होना शुरू हो गई है। खुश रहो लाइफ में, क्रिकेट खेलना पर यही मैं चाहता हूँ, अपना सपना पूरा करो। मार्ट साहब से रोमांस करो जिस मर्जी के साथ, हमें फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या फर्क नहीं पड़ता, फिर क्यों दिन भर रोते रहते हो? मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे क्या लगता है आपको, करण और प्रीता हमारे कुंडली भाग्य वाले फाइनली मिले या नहीं मिले?
अरे आप ही से पूछ रही हूँ, मिले या नहीं मिले? वेल देखिए, मिलते हुए भी ना मिलना किसे कहते हैं, आज हम आपको बता देते हैं। जिस पल का इंतजार कर रहे थे करण और प्रीता के फैंस, देखिए वो पल आखिर आ ही गया। करण और प्रीता को यूं एक साथ देखकर आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि क्या ये दोनों मिल गए क्या? अब देखो, मिलेंगे या नहीं ये तो ना आप सीरियल की कहानी में देखिए, हम तो आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर करण और प्रीता का एक फोटो शूट हो रहा है। करण अपने ब्लैक आउटफिट में है तो वहीं प्रीता लाल रंग की इस साड़ी में बहुत ही प्यारी लग रही हैं। दोनों के ड्रेस का ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही कमाल का लग रहा है। कुछ पल के लिए ही ये दोनों साथ आए, हम तो भाई इन्हें एक साथ देखकर खुश ही हो गए। वैसे आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। सृष्टि वैसे ही परेशान है प्रीता को लेकर, क्योंकि जब से वो मुंबई आई है कोई न कोई हादसा उसके साथ होता जा रहा है। अब देखिए करण की गाड़ी से ही प्रीता का कितना बड़ा एक्सीडेंट होगा। प्रीता को लोग अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन करण जिससे एक्सीडेंट होगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसकी गाड़ी से प्रीता का एक्सीडेंट हुआ है। तो अब तक आपको सवालों का जवाब भी मिल गया होगा कि फाइनली आने वाले एपिसोड में भी करण और प्रीता नहीं मिलेंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। और क्योंकि संडे का दिन है और संडे का दिन होता है बड़ा ही रिलैक्स्ड और चिल्ड आउट, तो ऐसे में ही संडे वाली चिल्ड आउट रिपोर्ट तो बनती है ना। मोहन जी को बचाने के लिए हम हर हद पार कर सकते हैं। जब मोह के धागे उलझ जाते हैं तो उसे सुलझाने के लिए आपका जीवन साथी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। अब ऐसे ही यहाँ देखिए राधा को, जो अपने मोहन के लिए सज रही है, संवर रही है। और ये राधा आज कोई आम राधा नहीं, बल्कि वो भारत माता का रूप लेने वाली है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में अपने मोहन को बचाना है। इसलिए तो देखिए राधा भारत माता बनने में कोई कसर नहीं छोड़ रही।
भारत माता के लुक में आने के लिए हेयर मेकअप पर खास ध्यान दे रही है। ऐसे लंबे बाल, ये मुकुट, ऐसे मेकअप, नथनी एंड एवरीथिंग, और ऐसे साड़ी, ये सारी चीज़ें आई थिंक हम सब सोचते रह जाएंगे कि एक्चुअल भारत माता कैसी है, या भारत माता कोई था या क्या है, नहीं है। हम एक्चुअल भारत माता अगर कोई होता तो उसे कैसे रेडी करते, क्या करते, हम वो तो नहीं जानते। पर मैं ऐसी रेडी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद भारत माता अगर कोई होती तो ऐसे ही होती, ऐसी रेडी। राधा आज रियल लाइफ में भी भारत माता का गेटअप लेकर काफी एक्साइटेड हो रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर स्कूल में ये भारत माता बना करती थी। खैर, रियल लाइफ में चीजें बिल्कुल अलग हो गई हैं, क्योंकि राधा के दिमाग में केवल यही चल रहा है कि वो किसी भी तरह अपने मोहन को ढूंढ निकाले। हालांकि इस कार्य में राधा के साथ दुआ और शक्ति भी शामिल हैं, जो राधा की मदद करने पहुंचे हैं। मोहन जी को बचाने के लिए हम हर हद पार कर सकते हैं। 76 साल पहले हमने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी, और आज इंसाफ की खातिर हम इस जेल की दीवारें तोड़ेंगे। जब 3 देवियों का महासंगम हो गया है तो मोहन की तलाश जरूर खत्म होगी, और मोहन को दुश्मनों के चंगुल से आजाद कराकर ही तीनों दम लेंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगर दुनिया होती है तो पिता उस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए जी जान लगा देता है, लेकिन आज अंकिता लोखंडे की दुनिया से पिता का साया उठ चुका है। उनके पिता शशिकांत लोखंडे 68 साल की उम्र में दुनिया छोड़ चले हैं। बचपन में पिता के जिन कंधों पर बैठकर अंकिता ने दुनिया देखी थी, आज उन्हें अपने ही कंधे पर उठाकर जिंदगी के आखिरी सफर पर रवाना हो रही हैं। एक परिवार के लिए ये बहुत बड़ा झटका होता है जब पिता का साया सर से उड़ जाता है। जब ये खबर फैल गई कि अंकिता के पिता इस दुनिया में नहीं रहे, तब उनके करीबी दोस्त भी पहुंचे अंकिता का दुख बांटने के लिए, और उनमें शामिल थी श्रद्धा आर्या भी। अंकिता और उनकी फैमिली के लिए आज का दिन पहाड़ जैसा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि अंकिता, आपके पिता की आत्मा को शांति मिले और आपके पूरे परिवार को इस गम को सहने की शक्ति दे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में चलिए सबसे पहले चलते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सेट पर। वो कहते हैं ना, जब कोई काम ना आता हो तो उसे नहीं करना चाहिए। अब आ गई ना सभी गाड़ी के नीचे, हो गई ना शिखा और काकू से गलती। वो हम इसे घर नहीं ले जा सकते। लेकिन शिखा, इस तमाशे के डर से हम इसे यहीं पे छोड़ के नहीं जा सकते ना। पुलिस के सुनने से तो अच्छा है कि हम इसे घर लेके जाए ना, ये रिस्क ले सकते हैं हम लोग। अब गलती हुई है तो भुगतान तो भरना ही पड़ेगा। तभी तो अपनी गलती को छुपाने के लिए शिखा और काकू ले आए हैं सभी को अपने घर।
लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये सवी है। कौन है ये लड़की? नाम क्या है इसका? बेहोश हो गई थी बेचारी, तब से होश ही नहीं आया इसको। जब अंधेरे में सभी को लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है, वो उसे मारने लगती है। सभी घर वाले आते हैं। कैसे यहाँ पे चोरी करने के? हाँ? वैसे जब लाइट्स ऑन होगी तो सभी को पता चलेगा ये कोई और नहीं बल्कि ईशान है। लेकिन ट्विस्ट तो तब आएगा जब सभी को ये पता चलेगा कि घर में जो लड़की आई हुई है वो कोई और नहीं बल्कि सवी है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का। यहाँ तो वही बात हो गई ना कि अनुपमा कितनी भी कोशिश कर ले चीजों को ठीक करने की, लेकिन परेशानियां दूर होने के बदले और बढ़ती ही जाती हैं। आदिक से लड़ाई के बाद अनुपमा जाती है रोमिल को मनाने के लिए, लेकिन रोमिल का गुस्सा तो 7वें आसमान पर है। अब ये सब स्वीटी ने सुन लिया। अपने हाथ में रहना। जिसके बाद अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करेगी कि किस तरह से उसका पति उस पर वायलेंस कर रहा है और उसे ये सब नहीं सहन करना चाहिए। तू जो करती आई है वो बदतमीजी है, जो वो कर रहा है वो बदसलूकी है, जिससे अक्सर इससे दूर जाते हैं। लेकिन ये क्या, स्वीटी ने तो आज अनुपमा को ही सुना दिया। आज भी अपने रिश्ते और परिवार को संभालने की सिर्फ कोशिश ही कर रही है। मैं अधिक का साथ नहीं छोड़ूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला सीरियल है ये रिश्ता क्या कहलाता है का, जहां अब अक्षरा ने ठान लिया है कि वो अभिमन्यु को उसके किए की सजा मिलते हुए देखना चाहती है, जिसके लिए वो कोर्ट भी पहुंच जाती है। कोर्ट पहुंचकर वो अभिमन्यु को इस बात का एहसास दिलाना चाहती है कि उसकी वजह से अबीर के सिर से पिता का साया छिन चुका है। जूनियर कैसा है? हीर के पिता भी हीर है, वो बिन बाप की औलाद है। अब इस गिल्ट से अभिमन्यु कैसे जिएगा और वो कैसे प्रूव करेगा कि वो गुनहगार है कि नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला सेट है सीरियल इमली का, जहां एक तरफ अनुज जुट गई है सभी को अपने तरफ करने के लिए, वहीं आज वो ले आई है तपन की असली माँ को, ताकि वो सभी को ये बता सके कि वो अब सुधर चुकी है। लेकिन ये तो हमारा काम है कि आपको बताएं कि आगे कहानी में कौन सा ट्विस्ट आएगा। तभी तो देखिए कैसे अनु ने चल दी है अपनी चाल। उनके वजह से मैं बेघर होने से बची, ऊपर वाले ने मेरी किस्मत बदल दी और राना की अच्छाई ने मुझे बदल दिया। मैं अब गलत का साथ नहीं दे सकती। और जिसके बाद अब इमली को लगने वाला है एक बड़ा झटका। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल पंड्या स्टोर का, जहां अपनी फैमिली के लिए धवल ऐसी चीज करने जा रहा है जो शायद वो नहीं करना चाहता था। जी हाँ, आज वो नताशा को प्रपोज करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि नताशा उससे सवाल कर लेगी। अब ये सवाल क्या था, आप भी सुनिए। Will you marry me? क्या? हाँ, मतलब तुम शादी करोगी मुझसे? क्यों करूँ तुमसे शादी? जानते क्या हो तुम मेरे बारे में? वैसे ये सब सुनने के बाद धवल अपनी असली फीलिंग्स को बताता है या नहीं, और नताशा इस सच को जान पाएगी या नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।